Welcome back everyone. So in the previous video we were discussing the chapter 4 the problem of population in India. So we have covered till point 6 which demonstrated that why population growth or population explosion is seen has been seen in the India. So now let's move to the point 7 where we'll see the expectation of life or life expectancy has also increased the help to increase the population of India. So first of all, what is expectancy? So it is the average life of the people of a country. So from this graph you can see that earlier our life expectancy was very low in 1951, and as compared to 2022 it has become to 70 years. So in developed countries like America it is about 73 years. So basically our life expectancy is also increasing, and growth rate of population is not as much as determining factor as the expectation of life. मीन्स कि जैसे जैसे लाइफ मतलब ग्रोथ रेट वो मेनली डिफाइन नहीं करता कि पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है कि नहीं, डिफाइन करता है क्या एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ. क्योंकि हमने देखा था कि for in the initial phase or in the first step of demographic transition we have seen that our birth rate was more, but also the life due to less life expectancy, which is only just 33 years. Death rate was more, so basically population were getting balanced out. But as the medical facilities increased, people life expectancy increased and birth rate continue to be at their usual. So it became like that population started rising. With rise in average expectancy of life, people may contribute more to the productivity of wealth. uh, so basically we were seeing points of what demographic feature of Indian population. Okay, we were seeing the demographic feature of Indian population. So it is saying that with rise in average expectancy of life, जैसे जैसे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़ती है, पीपल से की लाइफ की बढ़ती है, पीपल में कंट्रीब्यूट मोर टू द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. वो वेल्थ जनरेशन में वैसे वैसे वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, बिकॉज विथ expansion of the times their experience increases, their exposure increases, their connection increases, so they can build more something more new by coming together. So बहुत सारी इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं. So currently expectation of life in India is estimated to be 70 years. अभी का 70 years है, बट वर्ल्ड का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मच लॉन्गर देन आवर्स, हमारे से बहुत ज़्यादा. जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में 83 ईयर्स है, जापान का 84 ईयर है, इंग्लैंड 82, अमेरिका 77, चाइना 79, श्रीलंका 77. सो बेसिकली जो बाकी कंट्री का जो ग्रोथ सॉरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आर मच मोर ग्रेटर देन दैट्स ऑफ आवर्स. So and if you talk about the global average life expectancy, which is counted in 2022, was approx 72 years. So again, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे निकाली जाएगी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाली जाती है दैट एवरेज लिविंग पीरियड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. So now let's talk about sex ratio. So sex ratio क्या है? Sex ratio is the mean average number of female per 1000 male. Means 1000 male के लिए या को साथ देने के लिए कितनी सारी फीमेल है. So that's the sex ratio. In most of the nations of the world male outnumbers the female. ज़्यादातर अधिकतर नेशन में जो मेल है वो मेल की संख्या फीमेल से ज़्यादा होती है. सेक्स रेशियो इन वर्ल्ड इज 984 फीमेल टू 1000 मेल. पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की देखी जाए तो 984
पुरुष जो है वो अवेलेबल है, और मतलब फीमेल्स पर 1000 फीमेल्स के, वो सॉरी फीमेल जो है इतना अवेलेबल है पर 1000 मेल. So according to 2011 census, sex ratio in India was 943 females to 1000 males. 1000 males के लिए 943 females थी. It has changed from census to census. सेंसस के अनुसार चेंज होता रहा, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. कभी ये 1901 में भी कितना ग्रोथ रहा, फिर 1971 में ये डिक्रीज हुआ, 1981 में भी डिक्रीज रहा, 2011 में भी मतलब यहाँ से इधर से तो इंक्रीज किया, बट एज कम्पेयर टू 1901 ये डिक्रीज रहा. सो बेसिकली ये सेंसस टू सेंसस वेरी करती रहती है, बिकॉज वो बताते उस टाइम सेंसस के दौरान जो सेंसस की कैलकुलेशन हो रही है उस दौरान कितने पॉपुलेशन है वो उस पर डिपेंड करता है. सो इन इंडिया सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस 2011 की सेंसस के अनुसार 943 जो है फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स. सो वेयर इन रसिया 1167 फीमेल, ब्राज़ील 1042, Japan 1055, USA 1025, China 926. So basically you can see that in Russia, Brazil, Japan and USA, females outnumbers the male. However, on world average, males outnumber the females. Males outnumbers the female on world average. So basically sex the world average sex ratio is 984 in 2011. It was just 984. And in India अब इंडिया में देख, जैसे कि रशिया, ब्राज़ील, जापान, यूएसए, इन कंट्री में तो ओवरऑल कंट्री लेवल पे फीमेल की रेशियो, फीमेल की संख्या नंबर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल. बट इन इंडिया में स्टेट की बात करें जहाँ पे फीमेल आउट नंबर द मेल इज दैट केरला. इन द स्टेट सेक्स रेशियो इज 184 फीमेल पर 1000 मेल. केरला में फीमेल की संख्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल. सेक्स रेशियो इज मिनिमम इन डिमांड एंड ड्यू. सेक्स रेशियोज अभी हमने देखा कि मैक्सिमम किधर है, अब मिनिमम देखे तो उसी डिमांड एंड ड्यू में है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है. वहाँ पे जस्ट 618 फीमेल्स पर 1000 मेल अवेलेबल हैं या पर 1000 मेल हैं. इन पंजाब इट इज़ 895, हरियाणा में 879, हिमाचल प्रदेश 972, उत्तराखंड 963, ओडिशा 979, हरियाणा 879 एंड केरला विथ 1804 इज़ द टॉप. सो बेसिकली हरियाणा जो है सबसे लोवेस्ट है. हरियाणा का सेक्स रेशियो जो है सबसे लोवेस्ट है, सबसे नीचे है हरियाणा विथ 879, एंड केरला जो है वो सबसे ऊपर है अमॉन्ग ऑल स्टेट्स where the sex ratio is about 1084. So here we can write for clarity that Haryana is have lowest with 879 only, and that of Kerala जो highest है with 1084. The sex ratio in the country is the age group 0 to 6. The sex ratio in the country in the age group 0 to 6 has decreased at a faster pace than the overall sex ratio of the country after 1981. Means 1981 बीच में 1981 के बाद से 0 से 6 साल के बीच में जितने मतलब 0 से 6 साल में कितने मेल हैं और 0 से 6 साल के कितनी फीमेल है, उसकी अगर सेक्स रेशियो निकाले तो बेसिकली क्या हुआ कि ये हैज़ डिक्रीज फास्टर पेस, डिक्रीज हुई है विथ बहुत तेज़ गति से डिक्रीज हुई है सेक्स रेशियो. फॉर एग्जांपल इन 1981 इट वाज 962, in 1991 it was 945, and in 2000 it
it declined to 945, and 2011 it declined to 1919. So ये हम सेक्स रेशियो किसकी बात कर रहे हैं? ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 year. So the decreasing sex ratio in the country is not good sign for our society. ये अच्छा सिंबल साइन नहीं है. Less female ratio leads to many social and moral evils. Like you can consider by yourself that if females are more than there's the competitions for the wife, or you can see that रेप टाइप इश्यूज राइजेज. सो ये कि हमारे सोसाइटी में एक मतलब इविल सोसाइटी को इविल बना देती है. रॉन्ग डूइंग्स ज़्यादा अप्लाई हो जाती है. सो इन एब्सेंस ऑफ गुड मदर्स एंड मदर्स. सो बेसिकली हमारा यू कैन से दैट मोरालिटी जो सोसाइटी में मेंटेन की रहनी चाहिए वो नहीं रह पाती. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटरेसी. So what is literacy? Any person above 7 years who can above 7 year, minimum age is 7 year. So 7 से पहले के हम consider नहीं करेंगे. Above 7 year, any person above 7 year who can read, write in any language is treated as literate. जो या तो पढ़ सके या लिख सके. above 7 ईयर से नीचे वाले चाइल्ड को हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो उसको हम क्या कहते हैं? लिटरेसी रेट कर दें. अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 की गणना के अनुसार द रेट ऑफ लिटरेसी इन इंडिया इज 74.04%. मीन्स पर 100 इट इज 74.04. बेसिकली approx 74 people are you can say that approx 74 people are able to read and write. Male rate of literacy is 812. मेल का 74.04 में अगर हम मेल एंड फीमेल में डिवीज़न करें तो मेल का जो है वो है 82.14 लिटरेसी रेट एंड फीमेल लिटरेसी रेट इज 65.46. सो अब इसमें भी देखें तो हाईएस्ट, अब स्टेट वाइज देखें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो है हमारा केरला में है, जो कि बेसिकली 93.89 है. एंड जो लोवेस्ट देखें हाईएस्ट है, वी राइट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट देखें तो वो हमारा है बिहार में, एंड दैट इज अबाउट 63.8%. So the female literacy rate of Kerala is 92%, which is also the highest in India. फीमेल का जो लिटरेसी रेट केरला में है वो हाईएस्ट है ओवरऑल इंडिया. द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इज इन राजस्थान, इट जस्ट अबाउट 52.7%. फीमेल का लिटरेसी रेट राजस्थान में सबसे कम है. इन पंजाब फीमेल लिटरेसी रेट इज 71.73%, and in Haryana it is 66.8%. Himachal Pradesh it is 76.3%. In Jharkhand female literacy rate is only 56.2%. So basically ये जो हम लिटरेसी रेट देख रहे हैं जस्ट फीमेल का देख रहे हैं. 92% in Kerala. Rajasthan with the lowest it is 52.7%. And we are not talking about the overall literacy rate of Rajasthan, it is just the literacy rate of females of Rajasthan. So it may be noted that all state and union territory have shown increase in literacy rate during 2001 to 2011. 2001 से 2011 के बीच में जो लिटरेसी रेट है हर एक स्टेट्स ने इंक्रीज़ की है. अर्लियर जो सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट का स्टेट थी वो था बिहार, when UP and Jharkhand was combined, but in case of I think that in case of female literacy rate Rajasthan is the lowest, and in case of female literacy rate Kerala is the highest. That needs to be remembered. Occupational structure of population. Now let's talk about the occupational structure. What's the occupational structure? Occupation is the way of earning livelihood, the means that people takes to earn their livelihood.
earn their livelihood. So we have discussed in our previous chapter also that mainly the for occupation, all related activities and every activity, combining all activities, three major sector common sector has been created, and that on the basis of those sectors their occupation has been divided, and these three sectors are primary sector, secondary sector, and tertiary sector. So we have seen that in primary sector includes the agriculture related, husbandry related, animals related activities. Even it also includes the mining activities. Secondaries, basically in primary sector, all the activities which are related to nature or biology are considered as primary. Secondary sector is the secondary sector occupations where people are employed in the industries, where the manufacturing of or finishing primary products take place. So like making biscuits from the bread, so making a steel from the iron, so and all. So the output of primary sector is used as input in the many industries, and that's the secondary industry where the output of primary sector is used. So in we know that in developed nation composition of secondary and tertiary sector are more as compared to that of the primary sector. So what is the tertiary sector? Tertiary sector is uh, basically this also known as service sectors, where the peoples are employed, where the people's service sector peoples provide opportunity, and you can say that services to other primary and second other two sector, which is primary and secondary sector. It include trade, transportation, communication, banking, insurance, etc. Productivity of labor and income in this sector is more than the other two sector. इस सेक्टर में जितना प्रोडक्टिविटी है वो बाकी दो सेक्टरों के कंपैरिजन ज़्यादा है. ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर इज इंडिकेटिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. अगर इस सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, इट मीन्स दैट the economic of that country economy is developing. In India, service sector is growing faster than the other economic sector. यस, सर्विस सेक्टर जो है हमने पीछे भी देखा था पिछले चैप्टरों में, दैट आवर सर्विस सेक्टर जो है हमारा अच्छे स्पीड से ग्रोथ से रेट से बढ़ रही है, अच्छे गति से बढ़ रही है, एंड इज डोमिनेंट सोर्स ऑफ क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, एंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जो है अभी जो है इसी सेक्टर में. We have seen that no, it's not the highest employing sector, but it just, yes, it's increasing its pace. अभी भी हम देखें तो प्राइमरी सेक्टर में ऑक्यूपेशन ज़्यादा है, वेयर अबाउट 46.6% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड, 46.2% people, as per the, here you can see as per the data, occupation distribution of population in India, 46.2%, and tertiary sector has over basically you can say that tertiary sector का जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है सेकेंडरी सेक्टर से बढ़ा है, बट अगेन अभी भी वो हमारे प्राइमरी सेक्टर से कम है. एंड if a country want to fully develop, then its sector, tertiary sector, employment in tertiary sector should be approx comparatively more. So now let's see the occupational distribution, about we are going to now see the occupational distribution of the population in India. So basically from this graph deduction we are going to study. So in India, 46.6% of the population were engaged in agriculture in 2015-16. Here we have seen that 46.2% population are still engaged in the agriculture, as against 77.1% in the 1900s. But कंपैरेटिवली 1901 कंपैरिजन में ग्रोथ रेट तो शो ही हुई है. ग्रोथ रेट क्यों? बिकॉज देर इज डिक्लाइन इन द ऑक्यूपेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द प्राइमरी सेक्टर. सो अब बाकी देशों से कंपेयर करें कि बाकी देशों में कितने परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है इन प्राइमरी सेक्टर. सो यूके 1.3%, यूएसए 0.7%, जापान 2.9%. So overall you can say that in every developed countries there
employment in the primary sector is less than 3%, on maximum less than 3%. So as a result, per capita availability of land has declined. Basically, population of India has increased very rapidly. बहुत जनसंख्या बढ़ने के कारण, as we have seen that population explosion and all other regions like birth rate का same होना and death rate में कमी आना. So basically that had led to population explosion. So as a result, per capita availability of land has declined because in India the policy of dividing property is carried out. जैसे ही एक पिता के पास मान लेते हैं 10 हेक्टर ज़मीन है, तो अगर उसके 2 बच्चे हैं तो उसमें 5-5 हेक्टर करके वो ज़मीन बांट दी जाएगी. So that has resulted to land availability of land per person, and it gave rise to disguised unemployment in villagers. Number two is less development of industries. We have seen just about 21.8% of the population were engaged in this secondary sector. ये यहाँ तक कि tertiary sector से भी कम है. And where comparatively हम बात करें तो चाइना में 28.8% people and Japan 26.2% people are engaged in secondary sector. And we know that more the population in primary and secondary sector, more the economic development of a country. Similarly, in service sector, India are not much developed. टर्सरी सेक्टर में भी इंडिया उतना डेवलप नहीं है. इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज इज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे जैसे टर्सरी एक्टिविटी का अगर इंडेक्स बढ़ रहा है, इट मीन्स दैट्स द साइन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज यहाँ पे जो है पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है. इन इंडिया 32% ऑफ द पॉपुलेशन इन एनगेज्ड इन टर्सरी सेक्टर एज अगेंस्ट 79% इन अमेरिका. सो यू कैन सी dominant employment is in the tertiary sector in the developed countries. Here England provide 83%, 72% people in France are engaged in tertiary, 71% in Japan. So from these three we can see that our see, or we can say that deduce that our economy, all production activities are not equally developed. These are imbalanced. Neither primary sector is developed, neither secondary sector developed, neither tertiary sector is developed. All are imbalanced, and no no special change in occupation distribution, that though our national income has increased and all, but basically per capita income has also increased, but the thing is the occupation distribution में जो increment आना चाहिए था वो बहुत कम आई है increment, because from here you can see that just 71 minus 46 is 15%, just 15% decrement आया, approx 15%. So now let's see what suggestions can be taken, or what suggestions can be taken out, or what steps, actions can be taken out for the improving this occupational structure. So with regard to, we are talking about India. So with regard to occupational structure of India, the policy of government has been to develop rapidly a small and cottage industry and transport, banking, trade, etc. So various MSMES plan are active right now. So in budget of 25-26 has been shown. MSME is micro, small and medium entrepreneurship. So basically in this, these small and cottage cottage industries are promoted. So in order to correct the imbalance of occupational structure, a small and medium sized industries should be developed in the country. Because that it is labor intensive. The sector is labor intensive, the small industries are labor intensive, and it will absorb large number of labors, and as labors will be absorbed, their employment will increase, per capita income will increase, people will come from primary sector to secondary sector,
basically this also it is, though the industries are small, but it comes in secondary sector. So people migration to secondary sector will increase. So in the नियर फ्यूचर द यूथ शुड सर्च जॉब इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है कि यूथ को आने वाले सालों में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में अपना जो है जॉब की या एम्प्लॉयमेंट की करनी चाहिए। एंड फॉर दैट वी कैन सी दैट इंटरप्रेन्यूरियल एंटरप्रेन्योरशिप इन्वायरमेंट आर बीइंग क्रिएटेड एंड उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। सो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन शुड बी रिड्यूस। दूसरा क्या, पहला तो ये हो गया कि पीपल्स को, यूथ को सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में जॉब ढूंढना चाहिए। दूसरा ये है कि हमारे पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को रिड्यूस करना चाहिए। एंड तीसरा ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर शुड बी डेवलप्ड बाय इन्वेस्टिंग मोर फंड्स इन दिस सेक्टर, बिकॉज अभी भी हमारे जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है। सो इंडिया शुड ले मोर स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। हमने पहले भी बात किया था कि यस, इंडिया में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, नेशनल इनकम बढ़ी है, बट बेसिकली हर एक इंसान की नहीं बढ़ी है। इट्स पर कैपिटा निकाला गया तो ओवरऑल एवरेज निकाला गया है, जहाँ पे अमीर को भी मतलब ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करके पुअर्स को एवरेज पर कैपिटा इनकम बढ़ जा रही है। बट इन रियलिटी नहीं बढ़ पा रही है, बिकॉज हम जो इंडस्ट्री ग्रो कर रहे हैं या इंडस्ट्री पे जिस इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं वो क्या है, वो है टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्री, ऑटोमेशन बेसिकली इंटेंसिव इंडस्ट्री। सो बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा लेबर का एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पा रहा, लेबर्स का ग्रोथ नहीं हो पा रहा, and that's why we should focus on the development of labor intensive technology to effect change in occupational structure for the good of economy। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज रहेगी तो क्या होगा, फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द दैट agriculture sector, primary sector will migrate to secondary sector, and due to which our disguised employment problems which are prevailing in India right now will can be nullified or minimized। सो पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, नाउ हम देखेंगे कि मतलब क्या क्या कारण है। बेसिकली हम तो कारण जानते हैं, बट अगेन वी विल सी इन मोर डिटेल एंड आई विल ट्राई टू गो ओवर द सर्फेस बिकॉज वी हैव गोन इन वेरी डिटेल राइट नाउ, and if there points come something new which needed to be discussed, then definitely I will be discussing। So in India's population increased rapidly in the post independence period। इंडिपेंडेंस के बाद, पोस्ट, इट्स नॉट प्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड जो इंडिया का पॉपुलेशन है बढ़ा है बिटवीन 1951 to 61, इट इंक्रीज बाय मोर देन 7.82 करोड़। हमने ये देखा भी था कि 1951 ईयर को क्या रखा गया है एज अ पॉपुलेशन डिवाइड ईयर। क्यों? इसके पहले ग्रोथ रेट बहुत कम थी एंड इसके बाद जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बहुत तेज़ बढ़ी है। सो बेसिकली इतना अबाउट 21.6% 1951 1961 के में बढ़ा है, विच एक्सेडेड इज ग्रोथ रेट ऑफ प्रीवियस 60 ईयर। पिछले 60 सालों का जो ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का, उससे भी इन मात्र 10 सालों में पार हो गई। दिस एक्सेसिव राइज इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमने देखा इसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। सिंस 1951 पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। 1951 के बाद पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। बिटवीन 1971 एंड 81 ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज 24.8%, and between 1981 to 1901 it was 23.8%। so basically we can see that this is the era of demographic transition का second stage है। and here you can see that now with the development India is going towards the third stage of the population change or demographic transition। so the population was estimated to be 84 crore 63 lakh in the year 1991, and
102 no, 102.90 crore in 2001, and in 2000 the population of India increases to 121.05. So आप देख सकते हैं that it was just 84 crore 63 lakh in 1991, and it is now 121.051 crore in 2011. In 2021 it was estimated to be 139 crore. Thus India's population has been constantly rising at rapid rate. इसमें तो कोई असहमति की बात नहीं है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है इंडिया में, एंड with some methods, some preventive methods, now India is stepping towards the third stage, but still the population growth rate is comparatively comparatively very high than the other countries and other developed countries. So cause of increase in the population, तो पॉपुलेशन के इंडिया इंक्रीज होने का कारण क्या है? डिफरेंस इन बर्थ एंड डेथ रेट. हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस के टाइम से ही बात करते आ रहे हैं कि ड्यू टू डिफरेंस इन द बर्थ एंड डेथ रेट population increment took place, or population explosion took place, and difference between the number of immigrants and emigrants. हमने इस पॉइंट पे नहीं बात किया था. वी विल टॉक अबाउट इट, एंड बट फॉर अ ब्रीफ व्यू ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट. सो बेसिकली इट्स बिकॉज डिफरेंस इन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट. जैसे जैसे हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह बढ़े, हमारा डेथ रेट कम गया, बट बर्थ रेट जो है उसी रेट पे रहा. दैट्स वाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टुक प्लेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इमिग्रेंट्स एंड emigrants. Immigrants refers to the setting in of a person of the other nation, while immigration refers to going out of person to the other nation permanently. So basically immigrants जो है इनकमिंग है, एमिग्रेंट्स जो है आउटकमिंग है. एक कंट्री है, उसमें अगर कोई पीपल आ रहा है तो इसको इमिग्रेंट्स, आई मतलब इन से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इमिग्रेंट्स. एंड अगर पॉपुलेशन जा रही है तो वो एमिग्रेंट्स है, ई से एंड यू कैन कंसिडर एन कंट्री से बाहर जा रही है, देन दैट इज एमिग्रेंट. सो ये कैसे इफेक्ट कर रहा है? बिकॉज इमिग्रेंट्स आर कंपेरेटिवली मोर देन द एमिग्रेंट्स. If immigration is more than the migration or immigrants, then the population increases. But in India, for the last many years, the number of foreign immigrants settling in India and the number of Indian immigrants settling abroad is almost a negligible percentage of total population. मीन्स जितना शिफ्ट कर रही है वो लाइक 1000 में 1% शिफ्ट कर रहे हैं. So that's a very small number, 1000 में 1. So वही बोल रहा है कि ये नेग्लिजिबल है. डज इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब ये दो कारण थे जिससे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो सकता है. बट इमिग्रेंट एंड एमिग्रेंट्स में हमने कंपेरि देखा तो इस पे ऊपर कैलकुलेट किया तो हमने पाया कि जो हमारा ये इनकमिंग एंड आउट गोइंग ऑफ पीपल है वो बहुत कम है. सो मेन फैक्टर जो बचता है वो क्या है? बर्थ रेट एंड डेथ रेट. यही फैक्टर जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में मेन रोल प्ले किया है. सो मेन काउज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज द सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन द डेथ रेट कंपेयर टू द बर्थ रेट. 1901 एंड 1910 birth rate was 49.2 per thousand and death rate was just 42.6. सो दोनों बराबर होने के कारण वो बैलेंस आउट हो जा रही थी पॉपुलेशन, और ग्रोथ रेट बहुत कम हो रहा था. बट इन 2020 बर्थ रेट डिक्लाइन टू 19.5%. यस इट डिक्लाइन, एंड बट डेथ रेट यू कैन सी इट जस्ट बिकम 6 per thousand. सो दोनों डिक्लाइन की, बट रेट ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ बर्थ रेट वॉज कंपेरेटिवली मोर देन death rate was comparatively more than the birth rate. Thus even now birth rate is sufficiently high, with the death rate has declined considerably. So there are therefore two main cause of increase in population. Number one is high birth rate and low death rate. So
first of all, again revise what is birth rate and death rate. Birth rate refers to a number of child born per thousands in a year, and death rate is number of people die per thousand in a year. So हाई बर्थ रेट का कारण क्या है? नंबर वन इज पोवर्टी. इन अ पुअर सोसाइटी चिल्ड्रंस आर नॉट कंसिडर्ड बर्डन. जो सोसाइटी पुअर है वहाँ पे चिल्ड्रंस को बर्डन के रूप में नहीं देखा जाता है. ऑन द सोर्स ऑफ द फैमिली, रादर दे आर कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी टू द फैमिली. सोशल सिक्योरिटी के तौर पे देखा जाता है. पुअर पीपल स्पेंड लिटल ऑन द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग. वो अपने आने वाली पीढ़ी को पालन पोषण में बहुत कम एफर्ट डालते हैं. बिसाइड द चिल्ड्रन सप्लीमेंट्स द फैमिली इनकम बाय एंगेजिंग देमसेल्व्स इन सम और जॉब्स एट एन अर्ली एज. इसकी मतलब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में देखें तो पुअर सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे पीपल जो है वो बर्थ चाइल्ड मोर चाइल्ड को एज एसेट कंसिडर करते हैं, बिकॉज वो छोटी सी उम्र में कुछ ना कुछ और जॉब कर कुछ ना कुछ अर्निंग फैमिली को प्रोवाइड करते हैं. सो लार्ज फैमिली इज नॉट कंसिडर्ड बंडरसम. लार्ज फैमिली बंडरसम नहीं कंसिडर किया जाती. दैट्स वाई हाई बर्थ रेट. सेकेंड रीजन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन. इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है. वी नो दैट पीपल फील that more person are needed to help them in performing agriculture operation. and लोगों इंडिया में लोगों को लगता है कि ज़्यादा लोग रिक्वायर्ड है एग्रीकल्चर परफॉर्म करने के लिए. इवन चिल्ड्रन गेट सम सॉर्ट ऑफ वर्क इन एग्रीकल्चर. तो बच्चे भी कुछ वो करते हैं, लाइक प्लफिंग हो गया, इरिगेशन में हेल्प करते हैं पेरेंट्स की, लाइक प्रोटेक्टिंग द फील्ड्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड पेस्ट्स. सो इस तरीके की छोटी छोटी जॉब एग्रीकल्चर एक्टिविटी में चिल्ड्रन भी हेल्प करते हैं. दस दे डू नॉट प्रूव टू बी बर्डन ऑन देयर फैमिली. इसलिए वो अपने परिवार के ऊपर बोझ की तरह नहीं रहते. अकॉर्डिंगली रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ टेंडेंसी टू हैव लार्ज फैमिली. एंड इसीलिए रूरल पॉपुलेशन में जो रूरल का पॉपुलेशन है उसका ज़्यादातर चांस है कि वो वहाँ पे लार्ज फैमिली हो. प्रीडोमिनेंस ऑफ विलेज. प्रीडोमिनेंस ऑफ विलेज क्या मतलब? 68.5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लाइव्स इन विलेज एंड 31.15% लाइव्स इन टाउन्स एंड सिटीज़. सो अभी हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर में है वो लार्ज फैमिलीज़ की टेंडेंसी बढ़ जाती है एग्रीकल्चर पॉपुलेशन की. एंड वी कैन सी दैट आवर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर इन एग्रीकल्चर. दैट्स वाई आवर population explosion have taken place. In as contrary, 83% of population of England, 94% of population in Japan lives in urban areas. बर्थ रेट इज़ लो इन अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ द हाउसिंग प्रॉब्लम. वहाँ पे छोटे मकानों में रहना पड़ता है. शॉर्ट न्यूक्लियर फैमिली रहती है. हमने पीछे पढ़ा था कि न्यूक्लियर फैमिली होती है तो अब ब्रिंगिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. एंड ड्यू टू सम और जॉब्स भी अर्बन एरियाज में नहीं मिलते हैं. एंड दैट्स वाई जो पॉपुलेशन है वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है. Here you can see cost of bringing up of the child being low in the rural area, birth rate is high. जो cost of bringing है urban area में high है, but in rural area it is low. That's why the population of the rural area is more. Illiteracy rate. So basically right now we have seen there illiteracy in India. Highest literacy rate is in Kerala and lowest female literacy rate is in Rajasthan. We have seen right now in the previous pages. So illiterate person fails to understand the significance of family planning. Significance means importance. Illiterate people do not understand the importance of family planning. They are unmindful of living standards. रहने के तौर तरीके से अनजान है. एंड स्मॉल फैमिली के नियम से भी वो अनजान है. एंड दैट्स वाई दे रिप्रोड्यूस मोर एंड मोर. यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज एंड चिल्ड्रन. Universality means in India there is a conception that every man should be married and every
female should be married, so it's a feel like compulsion. An unmarried person and married couple with the और children are looked down upon, उन्हें नीची नज़रों से देखा जाता है। जो अनमैरिड है या जो कपल जिनके पास बच्चे नहीं है, उन्हें नीची नज़रों से देखा जाता है। सो hence every person gets married, goes in for children and results in high birth rate. Early marriage, earlier in India, a child marriage concept you must have seen, read it about that child marriage concept was prevailed. So most of the girls are married in the age of 18 to 27. उसे हटा के फिर भी हम इंक्रीज कर पाए वो जस्ट 18 to 27 है। एंड इस दौरान जो चाइल्ड बियरिंग जो होता है, इसके इतना अर्ली एज में मैरिज होने के कारण वो क्या हो गया, लॉन्ग हो गया। एंड दैट unmarried women up to the age of 30 years constitute 41% and 23% of the women population in Europe and America respectively. So basically जो अब कंपेरेटिवली देख रहे हैं तो अनमैरिड वुमेन अप टू 30 साल तक अनमैरिड वुमेन का जो रेशियो है वो 41% है इन यूरोप एंड 23% इन अमेरिका। बट एज कम्पेयर टू इंडिया, इंडिया में जो है वो बहुत कम है। सो इफेक्ट ऑफ रिलीजन, थर्ड जो 7th फैक्टर बनता है वो क्या है, रिलीजन भी बर्थ रेट को, हाई बर्थ रेट को प्रमोट करती है। इन इंडिया रिलीजियस आल्सो प्ले कंटेम्प्रेरी रोल इन लार्ज साइज फैमिलीज। अमॉन्ग हिंदू अ सन इज मस्ट टू इम्पार्ट कंटिन्यूटी ऑफ द फैमिली लिनेज। विरासत, लिनेज इज विरासत। सो हिंदू में ये मानना है कि मेल चिल्ड्रन आर मस्ट टू परफॉर्म कंटिन्यू द फैमिली लिनेज इवन आफ्टर सो मैनी गर्ल्स इन द फैमिली। ढेर सारे गर्ल्स होने के बावजूद भी, ढेर सारी चाइल्ड होने के बावजूद भी, डिजायर ऑफ वन सन प्रोम्प्ट्स पेरेंट्स टू कंटिन्यू विथ चाइल्ड प्रोड्यूशन। एक लड़के की चाहत में वो दे कंटिन्यू इन द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड प्रोड्यूसिंग। सो 8th factor is communal thinking. In India is a land of communal feeling. Many community and caste are need to increase in their number of political and social gains for their groups. Basically communal thinking ये है कि इंडिया में जो community based होते हैं वो इस तरीके की सोच है। तो basically यहाँ पे ये होता है कि more the people in a community, their privilege on the other community increases and their safety increases. So that's why they go for the more the basically children's. So many communities and castes are need to increase their number for political and social gain. And similarly polygamy, multiple marriage, that is multiple marriage, polygamy is multiple marriage among community leads to more child, it leads to high birth rate. Fatalism is that they have a strong faith in फेथ में, भाग्य में उनको बहुत ज़्यादा भरोसा है। वो भाग्य पे भरोसा करते हैं, गॉड पे भरोसा करते हैं। एंड बच्चों को गिफ्ट के तौर पे कंसिडर किया जाता है, इसलिए उनका जो बर्थ कंट्रोल मेथड है उस पर बहुत कम भरोसा होता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम भी हाई बर्थ रेट को प्रमोट करती है। वो कैसे? बिकॉज जॉइंट फैमिली सिस्टम में चिल्ड्रंस को पालन पोषण करना इजी होता है। एंड दैट्स वाई अगेन इंक्रीज हेल्प्स इन द राइज इन द बर्थ रेट। नो चेक ऑन द फैमिली साइड। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी एक हाई कारण, बहुत मेन कारण है इन ग्रोथ रेट ऑफ इन बर्थ रेट में का ज़्यादा होने में एंड पॉपुलेशन ग्रोथ का ज़्यादा होने में। ऐसा क्यों? इन्फेंट रेट में तो और बच्चे मर जा रहे हैं, मीन्स मर जा रहे हैं, इट मीन्स बच्चे तो डेथ कर सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर पॉपुलेशन ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट करें? बेसिकली यहाँ पे ये साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन आता है कि पेरेंट्स नो दैट देयर चाइल्ड सर्वाइवल आर वेरी लेस, so they continue to go for the process of reproduction. And because they think out of many children few will be able to survive. Also lack of family planning and low status of women. Basically low status of women is that
due to illiteracy, women are considered as a child producing machine, and among low income strata they are respected in proportion to the number of children they bear. अगर उनके पास लो इनकम है एंड दे आर इन पुअर फैमिलीज, दे आर ट्राइबल इन द ट्राइबल फैमिलीज, तो द वुमेन विथ मोर चिल्ड्रन आर respected more. So due to this, a woman goes for more and more child. So cause of decline in death rate in India. पहला हमने देखा हाई डेथ रेट का, सॉरी बर्थ रेट का. अब देखते हैं कि डेथ रेट का डिक्लाइन का कारण क्या है. ओवरऑल वी नो द इन रीजन्स, बट नाउ वी आर गोइंग टू गो इन डिटेल. So control over epidemics, number one is earlier we have seen that during the era of or period of British rule, due to epidemics and other like भूखे पेट महामारी, सो इन चीज़ों की वजह से, अलग अलग बीमारियों की वजह से हाई डेथ रेट थी. तो बर्थ रेट ज़्यादा होने के बावजूद भी दैट we were our population was in control. So but after improvement in the healthcare and all healthcare facilities, after increase in literacy, death rate has inclined, and we have seen that in in 2021 I think it was just 6 per thousand of the people. So that's led to the again increase in the population. Increase in urbanization in 1911, hardly 10.3% of population lived in urban areas, and due to the percentage of population living in town and cities went up to 31.5% in 2011. Better health, hygiene and sanitation facilities in town tends to lower the डेथ रेट. डेथ रेट को कम कर देती है क्या, हाइजीन, हेल्थ कंडीशन एंड इस फैसिलिटी जो है अवेलेबल. मेडिकल फैसिलिटी भी है अर्बन में ज़्यादा है. बैलेंस डाइट के अर्बन पीपल्स नो अबाउट द बैलेंस डाइट. एजुकेशन गिव द साइट ऑफ बैलेंस डाइट. लोगों को बीच में बैलेंस डाइट का कंसेप्ट रोज़ की, जिससे डेथ रेट अगेन कम हुई, बट बर्थ रेट उसी रेट पे रही. फैसिलिटी ऑफ मैटरनिटी होम्स मीन्स मैटरनिटी होम्स का फैसिलिटी भी डेथ रेट को कम करने में हेल्प किया. पहले क्या होता था कि अर्लियर द चांसेस वाज ऑफ दैट ड्यूरिंग द बर्थ पीरियड मैनी मदर्स डाइड ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, बट नाउ अब नर्सेस घर पे जाके रहती हैं, टेक केयर ऑफ द मदर्स. सो इससे क्या हो गया कि जो हमारा डेथ रेट हो, वो डेथ रेट ऑफ द वुमेन है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी डिक्लाइन. कंट्रोल ओवर फेमेंस, जैसे कि पहले among famines like condition emerged in 1987, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा इन स्टेटों में इफेक्टिवली मैनेज किया गया, जो कि इन फेमेंस के कारण अर्लियर ईयर्स में बहुत सारी लॉस, लाइफ की लॉस हुई थी, बट इट वाज दिस मैनेज वेल एंड एज द लाइफ वेरी लो पीपल डाइड, सो डेथ रेट डिक्लाइंड अगेन. स्पीड ऑफ फीमेल एजुकेशन, जैसे जैसे फीमेल का एजुकेशन बढ़ा, लिटरेसी बढ़ा, सो नाउ फीमेल का जो ये स्टेटस, लो स्टेटस ऑफ वुमेन का जो कंडीशन प्रॉब्लम था वो इन डिक्लाइन हुआ. सो नाउ वुमेन डू नॉट गो फॉर द मोर चाइल्ड्स. चेंज इन हैबिट्स, नाउ पीपल पे मोर इम्पोर्टेंस टू हेल्थ एंड क्लीननेस, दिस कैन आल्सो कीप द डेथ रेट लो. सो अगर हम छोटी बात करें, डिक्लाइन इन डेथ रेट हैज़ मोर देन द डिक्लाइन इन बर्थ रेट. सो डेथ रेट का डेथ रेट में जितना कमी आया है वो बर्थ रेट से बहुत ज़्यादा है, कमी बहुत ज़्यादा है, नॉट द अदर थिंग. सो प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन इंडिया है ये. अब ओवर पॉपुलेशन का भी मतलब डिफरेंट व्यू है, डिफरेंट ऑथर्स का मानना डिफरेंट है. सो बेसिकली जो मेन टू व्यू है वो है मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एंड थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन.
So Malthusian theory of population ये कहता है the rate at which population increase is much more than the rate at which means of subsistence increases. तो वो हो गया ओवर पॉपुलेशन का. When the people do not get adequate food to eat, they fall sick. There is famine in the country, thus the threat increases. In other words, the positive checks get supplied in the country, and the previous checks such as moral resistance restaurants, large marriage etc., which control the birth rate are non-existent. अगर ये सारी कंडीशंस है तो वो क्या है, ओवर पॉपुलेशन है एज पर द मल्थुशियन. अगर ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो विच गिव मैक्सिमम इनकम पर द ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट विच गिव द मैक्सिमम इनकम पर हेड. सो द पर कैपिटा द सिचुएशन ओवर पॉपुलेशन इज कैरेक्टराइज. ओवर पॉपुलेशन का सिचुएशन कब अराइज होगा एज पर द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन. नंबर वन, when the per capita per capita income of country decreases and standard of living fall with the increase in population. पर कैपिटा इनकम अगर डिक्रीज हो रही है एंड स्टैंडर्ड पीपल के स्टैंडर्ड्स लो हो रही है, तब वो ओवर पॉपुलेशन की कंडीशन मानी जाएगी एज पर द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन. द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो वो क्या मानी जाएगी, ओवर पॉपुलेशन की कंडीशन एज पर द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन. देयर इज़ नो सब्सटेंशियल इंक्रीज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे कैपिटल फॉर्मेशन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, तो वो क्या माना जाएगी, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन सॉरी ओवर पॉपुलेशन की कंडीशन मानी जाएगी एज पर द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन. So basically we can now India is not overpopulated and India is overpopulated as per the different these two ideologies has been discussed. So I think we should wrap it up, but if there is need then we are going to discuss it in next time. So for now let's stop here. In the next video we will see this in detail. So thank you.